Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, as a account teacher, is going to explain lesson first. Again, in previous videos, whether you must have seen, you can find a lot the terms and the conditions. So yes, today I would like to tell you the meaning and objectives of accounting. How now just you can see how the accounting process takes place in our real life. मैं ये भी बताऊंगा आपको, और किस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। आप लेसन फर्स्ट ओपन करेंगे, हम आपके बुक के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने भेजा कि सर आप लेक्चर देते हैं, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज भी होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट वन। अकाउंटिंग पढ़ते वक्त, while studying the accounting, suppose that you are the businessman. Whether you want to know the exact performance and financial position of the business, my dear, just at the end of each year, every businessman wants to know how much they have gained or lost during the year. आप देखते हैं प्रत्येक व्यवसायी, प्रैक्टिकल होइए, यदि आपने व्यवसाय किया है या व्यवसाय करने जा रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल जरूर बनिए कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हम साल के अंत में कितना लाभ कमाए या मेरी हानि हुई। तो आप देखेंगे और कितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसका हमें रिटर्न क्या मिला। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो साल के अंत में जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, जितने पैसे से हमने व्यवसाय शुरू किया है, वो हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, बाई कीपिंग इन माइंड, सपोज दैट हाउ वी कैन कंप्यूट, कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑफ द बिजनेस, वेदर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, और साल के अंत में कितना पैसा हमें किसी को भुगतान करना है, कितना पैसा हमें प्राप्त करना है, इन सारी बातों को जानना पड़ेगा। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे ऊपर कितना कर्ज है, हमारी कितनी संपत्ति है, इन सब बातों को हर बिजनेसमैन जानना चाहता है। अब in order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every transaction entered into during the year. अब इन सारी सूचनाओं को जानने के लिए, सारी बातों को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो भी हम लेन देन करते हैं,
उसको जो है हमारा पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसी बुक में होना चाहिए। Whether we want to attain such information, we will have to keep systematic and complete record of all the business transaction during the assessment year, at the end of year। सबका इंफॉर्मेशन रहेगा तभी हम इस चीज को कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व होइए और आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब by keeping a complete and systematic record of every business transaction, business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchase, how much is the amount of sales, what are his total expenses, and what is the amount of profit earned or loss incurred during the assessment year। By keeping such systematic and complete record, every businessman can know by calculating them how much the expenses incurred during the assessment year, how much amount just the purchase, how much amount of sales, expenses। This way, a businessman can ascertain the total loss, total gain of the business enterprise। And he will be able to know the actual performance of the business, actual financial position of the business। अब इतना कुछ होने के बाद जब ये जान जाएगा बिजनेसमैन कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना हमारे, जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाएगा बेटा, और हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो भी कंप्लीट और बिजनेस, तो साल के अंत में हम कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि हमको फायदा हुआ कि नुकसान, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अब आप ये देखेंगे कि जो आपका importance of accounting record is increasing day by day। Nowadays, आजकल properly maintained accounts give the answer of number of questions। जिस तरह से अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो such as what is the cost of the production, जो भी अकाउंट रखते हैं तो हमारा जो हमने, यदि हमारी फैक्ट्री चलती है तो लागत क्या है, इन सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, जो ये कास्ट हमारा प्रोडक्शन में लगा है ये सही दिशा में है कि नहीं है, क्या इसे कम किया जा सकता है, कैन इट बी रिड्यूस्ड, एंड इट सो इन व्हाट मैनर, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन सब बातों को असर्टेन करने के लिए क्या हमको सेलिंग प्राइस रखना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट हो, हम प्रॉफिट अर्न करें, और वो पब्लिक, वो कॉस्ट भी, जो सेलिंग प्राइस हो वो भी रिजनेबल हो, जो कास्ट प्राइस हो वो भी रिजनेबल हो। अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जो हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट का, उन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाते हैं हम अपने बिजनेस का, यदि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा
तो जो हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो रिजनेबल है कि नहीं है, वो इस योग्य है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या हम कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हम सेलिंग प्राइस फेयर रखें ताकि हमारे कस्टमर्स सेटिस्फाई हों, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, हम उसे मार्केट में आसानी से सेल कर सकें। ये सब क्या होता है, कैसे? दस बिजनेस ओनर कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन with the help of the information provided by accounting data। और इन सब चीज़ों को रखने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, तो अकाउंटिंग डेटा से ही हम इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप पूरी बात को समझ गए होंगे। बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी मिला हुआ है। भाई आपको बिजनेसमैन हो करके सोचना पड़ेगा। यदि आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस, प्रतिदिन का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पूरा, और वो भी सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। उस सिस्टमेटिक ढंग को करने के लिए अकाउंटिंग होता है। मतलब अब बिजनेस ओनर जो होता है, बिजनेस का जो एंटरप्राइज का मालिक होता है या मैनेजमेंट बॉडी होती है, कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा के तहत जो हम ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हैं, कितना एक्सपेंस है, उससे हम इन बातों को असर्टेन कर सकते हैं, जान सकते हैं, बेहतर ढंग से हम अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अब हम अकाउंटिंग का मतलब, इन सब चीजों को कैसे किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन, हाउ द इंफॉर्मेशन और कलेक्टेड, हाउ द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्डेड, just the process, accounting tells the such process. So accounting is the process of identifying, classifying, summarizing, recording, analyzing, interpreting of all, measuring of all the business transactions। ये सारा प्रोसेस अकाउंटिंग हमको बताता है कि हम जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। उसको पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई करके उसे रिकॉर्ड कर देना, किसी बुक में लिख देना सिस्टमेटिक ढंग से। तीसरा होता है कि वही ट्रांजैक्शन, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसे हम मनी में मेजर कर सकें, जिसका हम रुपए में मूल्यांकन कर सकें। उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की एक डिमेरिट है। अब जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, इसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं, पैसे रुपए में नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वॉट एवर द ट्रांजैक्शंस अकॉर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे ही ट्रांजैक्शन को दे कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इन्हें ही हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन्हें ही किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, अब एक चीज और भी बता सकता हूं बेटा आपको, आप साइंस पढ़ते हो, आर्ट पढ़ते हो,
तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये दोनों है, आर्ट और साइंस दोनों है। कैसे है जरा देख लें। पहले हमको जानना है कि आर्ट क्या होता है। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हम पूर्व नियोजित उद्देश्य है हमारा, उसे प्राप्त करने की जो तकनीक हम अपनाते हैं, जो तकनीक अपनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जानते हैं आर्ट का मतलब पिक्चर ड्रा कर देना। तो अगर जो पिक्चर हमें ड्रा करना है, जरा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमें पिक्चर ड्रा करना है तो हम क्या तकनीक एडॉप्ट करें कि जो हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में जिस चीज का पिक्चर ड्रा करना है वो कौन सी तकनीक एडॉप्ट करेंगे, वही हमारी कला है। तो अब अकाउंटिंग, हम जो ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन है, जो हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन है, उसे अटेन करने के लिए जो तकनीक हम अपनाते हैं वो अकाउंटिंग हमें बताता है। तो इसलिए ये आर्ट हुई, टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक कला है। तो अकाउंटिंग क्या हो गया? और रिकॉर्ड किया हमने, क्लासिफिकेशन किया ट्रांजैक्शन का, समराइज किया जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए अकाउंटिंग एक कला भी हो गई। और इस कला के माध्यम से हम अपना ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, इससे हम, इस कला से हम अपना सही सही जो प्रॉफिट होता है और जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आर्थिक ढांचा है, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए साइंस कैसे है, विज्ञान कैसे है। तो सबसे पहले हम विज्ञान का डेफिनेशन वो करते हैं। साइंस क्या होता है? किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, और दिस वन इज द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। तो आप जरा सा देखें, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which is based on certain specified principle, जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान और किसी सिद्धांतों पर आधारित होता है, वो विज्ञान कहलाता है। बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड, मतलब जो सिद्धांत उसके निर्धारित किए गए हैं, इस सिद्धांत के ऊपर जो होता है वही हमारा क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। अब जरा सा देखें, इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटिंग इज आल्सो ए साइंस, अकाउंटिंग भी एक विज्ञान है। कैसे? सिंस इट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, ये भी सिद्धांतों के ऊपर जो स्पेसिफिक इसके प्रिंसिपल हैं, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसकी पॉलिसी, इसके सेट रूल्स हैं, उसी रूल के ऊपर आधारित होता है। ये नहीं आप जैसे चाहें वैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये विज्ञान भी है। तो एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस होता है? बेस्ड ऑन
सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर आधारित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसका भी सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स है और उसी के ऊपर ये आधारित होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एक कला है, एक विज्ञान है, इन बातों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेफिनेशन और कैसे इसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।